Hello friends, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning tissue in anatomy and physiology. My last lecture of anatomy and physiology means tissue. We learn types of tissue, just only the name like the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. As well as we learn the definition and few features and function as well as classification of epithelial tissue. Today we are learning the most important tissue, that is the connective tissue. Connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue in our body. सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है that is the connective tissue. Okay, now is the function of connective tissue. There are the different kind of the function because there are the subtypes of the connective tissue. These subtypes of the connective tissue perform the different kind of functions like protection and support is the one function of the connective tissue. Connective tissue protect as well as support our body organs. That's why we say the connective tissue is perform the important function, that is the support and protection. Next function of connective tissue is binding, or connective, we can say bind, connective tissue bind और body organs together. बॉडी के हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को ये एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखते हैं, एक कनेक्शन है. Next is storage and connective tissue is perform as a reservoir of energy. Connective tissue is the perform the one function, that is the storage, means ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जिसको अपन इमरजेंसी केसेस में हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है. नाउ अनदर फंक्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स. कनेक्टिव टिश्यू इज द सोर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. Means this connective tissue is capable to prevent our body from the pathogens. जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने में ये अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जो एक टाइप है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द ब्लड एंड लिम्फ, विच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन, इवन द वेस्टेज. Okay, that's why we can say the function of connective tissue is also the transport system. Now this connective tissue is made up by the different kind of the cells. Now we are learning the connective tissue cells. Okay, the embryonic cells called the mesenchymal cells. Okay, जब हमारी बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिस एक ऑर्गेनिज्म का, एक ह्यूमन बीइंग का जब डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट जो होता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब जाइगोट बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गेस्टुला बनता है, क्या होता है बोलते हैं अपन उसको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो जो सेल्स होती है एम्ब्रियोनिक सेल होती है हम उसको बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल. एंड दिस मेसेनकाइमल सेल इज द वन सेल फ्रॉम द ऑल सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज ड्राइव्ड और फॉर्म और डेवलप्ड. मेसेनकाइमल सेल से ही हमारी बॉडी की कनेक्टिव टिश्यू की सभी सेल्स का डेवलपमेंट होता है. ओके, एज वेल एज द इनिशियल सेल्स that are the immature cells which are finished with the word blast. means जो immature cell होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि मेसेनकाइमल सेल से बनती है, उसकी जो एंडिंग होती है विद द ब्लास्ट से होती है. फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट. ओके, हियर दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट इज द एंडिंग विद द ब्लास्ट, chondroblast as well as osteoblast is end with the word blast. Okay, fibroblast is the immature cell of loose connective tissue and dense connective tissue, as well as chondroblast is the cell or immature cell of the cartilage and osteoblast is the immature cell of bone. These immature cells have the capability of cell division, as well as these immature cells are secrete the ground substance of कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको ये इमेच्योर सेल सिक्रेट करती है. एज वेल एज इन इमेच्योर सेल्स में कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की. उसके बाद में ये मैच्योर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है. ओके, और लाइक द इमेच्योर सेल इज लास्ट और एंड विद द ब्लास्ट, लाइक दैट द मैच्योर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एंड विद द साइट, CYTE, साइट. Okay, for example, these fibroblasts when mature that become the fibrocyte.
fibrocyte. Like that, these chondroblast cells of cartilage when become mature, that is known as the chondrocyte. ओके ये कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाती है, मीन्स साइट से CYTE से ये एंड हो रहा है. देन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ऑफ द बोन इज बिकम द मैच्योर एंड नोन एज द ऑस्टियोसाइट्स. ओके ऑस्टियोसाइट से ये इसका एंडिंग होता है साइड से. दीज मैच्योर सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू फर्दर सेल डिवीजन. ये सेल्स अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाती है. ओके ऑनली मैच्योर सेल्स ही सेल डिवीजन करके ये मैच्योर सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है. ओके नाउ दिस connective tissue is made up by the different kind of the cells, like these are the enlisted types of the cells. Like first one is the fibroblast cells. Okay, we secrete the fibers. Okay, ये fibers को ये secrete करती है इससे, like the collagen fibers, reticular fiber and elastic fiber. According to the function, these are the three kind of the fibers. Then mast cells. Mast cells are responsible or present are responsible for the secretion of histamine. Okay, histamine. These secretion of histamine is dilate the small blood vessels. जब histamine release होता है mast cell से तो हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देता है. ठीक है. एज वेल एज प्लाज्मा सेल्स इज द अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ओके दिस प्लाज्मा सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रेस्पॉन्स. ओके एज वेल एज ल्यूकोसाइट मीन्स WBC. WBC देयर इज द eosinophils. Okay, eosinophils which is responsible for the allergic reactions. ठीक है. as well as next one is the neutrophils. Neutrophils is responsible for the immune responses. Okay, जब भी कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेनिक अटैक होता है तो ये सेल्स क्या करती हैं, उनको किल कर देती है, इनगल्फमेंट कर लेती है. देन एडिपोसाइट सेल्स आर स्टोर द फैट. ओके फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है. आफ्टर दैट इज द मैक्रोफेजेस इज द अनदर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंगल्फमेंट ऑफ द पैथोजेंस और सेल डेब्रीज. ओके इनको क्या करती है, फेगोसाइटोसिस कर लेती है. मीन्स फेगोसाइटोसिस मीन्स इंगल्फमेंट. फेगोसाइटोसिस करती है मीन्स इंगल्फमेंट. जो सेल डेब्रिज होती है या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं उसको इंगल्फ करके हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है. अब आपको इस पिक्चर से भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ये जो सेल्स हैं ये अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हुई सेल्स एक्चुअल में है क्या. लेट्स सी द फाइब्रोब्लास्ट. ओके फाइब्रोब्लास्ट इज द लार्ज फ्लैट सेल्स. ओके मूव थ्रू कनेक्टिव टिश्यू एंड सिक्रेट द फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. अब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, ग्राउंड सब्सटेंस भी सिक्रेट करती है और फाइबर्स का भी सिक्रेशन करती है. मीन्स फाइबर्स जो थ्री काइंड ऑफ फाइबर्स है, लाइक द कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स. इन तीनों फाइबर्स के डिफरेंट काइंड ऑफ अपना अपना रोल होता है, अपना अपना फंक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द मास्ट सेल. प्लीज लेट्स सी इन दिस पिक्चर द मास्ट सेल जो कि ये ब्लू कलर में दिख रही है. ये क्या मास्ट सेल्स क्या होती है, ये मोस्टली ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. दे प्रोड्यूस द हिस्टामाइन एंड डायलेट द स्मॉल ब्लड वेसल्स. ठीक है, ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन एंड किल्स द बैक्टीरिया. दिस इज द फंक्शन ऑफ द मास्ट सेल. ये हमारी मोस्ट ऑफ द हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है. ओके जब कभी भी इन्फेक्शन होता है तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है बाय द सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन. एज वेल एज हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं उनको भी ये किल कर देती है. Next cell is the plasma cell. Okay, just beside the mast cell in this picture is the plasma cell. Plasma cell ideally develop from the B lymphocytes. ठीक है, small cells जो होती है WBC उसके B lymphocytes से ये develop होती है. ठीक है, and this mast cell secrete the antibodies through which responsible or develop the immune system or neutralize the foreign substances. Okay, after that the another cell is ल्यूकोसाइट्स. एक्चुअली दिस ल्यूकोसाइट्स आर द इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. इस पिक्चर्स में अंदर इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को बताया गया है. दिस न्यूट्रोफिल्स आर द WBC और वाइट ब्लड सेल्स. ओके एंड विच इज डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन और प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग द माइक्रोब्स और
पैथोजेंस बाय द फेगोसाइटोसिस। ये भी फेगोसाइटोसिस का काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल करता है और एज अ इम्यून सिस्टम की तरह अपना काम करता है। आफ्टर दैट एओसिनोफिल्स, ओके, ये भी एक टाइप है WBC का, ठीक है। ये पैरासाइट जो इन्फेक्शंस होता है, ठीक है, इसकी साइड पर ये प्रेजेंट होता है और एलर्जी क्रिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है। आफ्टर दैट द एडिपोसाइट्स, okay, this is the in yellow color in this picture. Let's see the adipocytes. Adipocytes means fat cell which store the fat, okay, and just found below the skin and organs like the हार्ट एंड किडनी में ये प्रेजेंट होता है, ओके। ये फैट को स्टोर करके रखता है, मीन्स इज द स्टोरेज ऑफ द फैट, मीन्स रिजर्वायर ऑफ द एनर्जी। नाउ लास्ट वन इज द मैक्रोफेजेस, okay. These macrophages, let's see in this picture, these macrophages develop from the monocytes, okay, and destroy the bacteria and the cell debris by phagocytosis, okay. तो my dear friends, ये था अपनी कंप्लीट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इन सभी सेल से मिलकर बना होता है और अपने स्पेशल फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।